بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شہر میں ابر کرم کے بعد شہریوں کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ خطرناک وائرس انگڑائی لینے لگا۔ کرونا ایک بار پھر ستم ڈھانے کو بےتاب ہو گیا۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت شرح 2.8% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا کا خطرہ ایک بار پھر شہر میں منڈلانے لگا۔ 3 ماہ کے بعد لاہور میں کرونا کیسز کی مثبت شرح میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس بارے میں سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کے چوتھے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ شہری کرونا کے خلاف خصوصی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں۔ سماجی فاصلے اور ماسک کا استعمال ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں اور دیگر تمام افراد کو بچاؤ کی ویکسینیشن فوری لگوانی چاہیے۔ کرونا کے بعد شہر میں ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ بارشوں کے بعد شہر میں ڈینگی پھیلنے کا خدشہ۔ چیف سیکرٹری نے شہر کے 10 ٹاؤن کو ہائی رسک قرار دے دیا۔ شہر نے 10 ٹاؤنز میں ڈینگی ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ کرونا کے بعد شہر میں ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ بارشوں کے بعد شہر میں ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ چیف سیکرٹری نے شہر کے 10 ٹاؤنز کو ہائی رسک قرار دے دیا۔ شہر کے 10 ٹاؤنز میں ڈینگی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ انسداد ڈینگی کی شکایات نہ نمٹانے میں واسطہ بازی لے گیا۔ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے میں والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا دوسرا نمبر۔ سرکاری اداروں نے ڈینگی کی 584 شکایات کو نظر انداز کر دیا۔ کمشنر لاہور کا واسطہ افسران اور عملے کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار۔ ڈینگی سرویلنس مہم میں سب سے زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اداروں میں پہلا نمبر واسا کا ہے، جبکہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا دوسرا نمبر۔ انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے عوامی شکایات نہ نمٹانے والے اداروں میں واسا بازی لے گیا۔ واسا نے 125 شکایات کو نظر انداز کیا۔ کمشنر لاہور نے واسا افسران اور عملے کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ انسداد ڈینگی ڈیش بورڈ پر ڈینگی سے متعلق 6893 شکایات موصول ہوئی۔ سرکاری اداروں نے 584 شکایات کو نظر انداز کیا۔ واسا کو 1112 شکایات موصول ہوئی۔ LWMC نے 2798 شکایات میں سے 2328 شکایات کو نمٹایا۔ محکمہ صحت نے 240 شکایات میں سے 222 نمٹائیں۔ اسکول ایجوکیشن نے 14 شکایات میں سے 7 نمٹائیں، جبکہ محکمہ C&W نے 7 شکایات میں سے ایک بھی شکایت نمٹانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ بجلی بچاؤ مہم اتوار آف ڈے ہول سیل پرچون کی دکانیں، بیکری، جنرل سٹور، ویئر ہاؤس، شاپنگ مال، نجی دفاتر اور گودام بند۔ مختلف علاقوں میں انتظامیہ کے احکامات نظر انداز۔ کریم بلاک مارکیٹ مکمل طور پر بند مگر چند سٹال کھلے رہے۔ بیکریاں اور جنرل سٹور بند ہونے سے شہری پریشان رہے۔ بجلی بچاؤ مہم اتوار آف ڈے ہول سیل پرچون کی دکانیں، بیکری، جنرل سٹور، ویئر ہاؤس، شاپنگ مال، نجی دفاتر اور گودام بند۔ مختلف علاقوں میں انتظامیہ کے احکامات نظر انداز۔ کریم بلاک مارکیٹ مکمل طور پر بند مگر چند سٹال کھلے رہے۔ بیکریاں اور جنرل سٹور بند ہونے سے شہری پریشان رہے۔ بجلی بچاؤ مہم اتوار کے روز شہر بھر کی بیکریاں اور جنرل سٹور بند رہے۔ کھابوں کے شوقین لاہوری روایتی ناشتوں سے بھی محروم رہے۔ والدہ کی سالگرہ کے لیے کیک کی خریداری کے لیے نکلا، شہری بھی پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی بچاؤ مہم اچھی چیز ہے، لیکن شہریوں کو ان کی ضروریات سے محروم کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ پنجاب حکومت کی بجلی بچاؤ مہم کے باعث ضلعی انتظامیہ نے زندہ دلانے لاہور کو روایتی ناشتوں سے بھی محروم کر دیا۔ چھٹی کے روز لاہوریے ناشتے، مٹھائی اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے دربدر رہے۔ بچے والدین سے من پسند کیک اور پیسٹریوں کا تقاضا کرتے رہے۔ بیکریوں پر خریداری کے لیے آئے شہری پریشان دکھائی دیے۔ ایک شہری نے کہا، والدہ کی سالگرہ تھی، 2-3 بیکریوں کا چکر لگایا۔ دن کے اوقات میں بیکریاں بند کر کے کتنی بجلی بچائی جائے گی؟ آج والدہ کی سالگرہ تھی، لیکن یہاں آئی ہوں تو کیک کے لیے تو بیکری بند پڑی ہے۔ اس سے پہلے میں نے دوسری برانچ گیا تھا، وہاں بھی بیکری بند پڑی تھی۔ کیک لینے آئے تھے بچوں کے لیے، یہ جو شاپ بند ہے آج کے لیے، یہ ان کو چاہیے تھا رات کو بند کرنی، یہ دن میں بند کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ بجلی بچانے کا تب فائدہ یہ رات کو شاپ بند کریں، ہمیں دن میں فائدہ ہو۔ شہر کی چھوٹی بڑی مارکیٹس میں کاروباری زندگی معطل رہی۔ شاپنگ مالز، جنرل سٹورز، اچھرا بازار، شادمان، جیل روڈ، گڑی شاہو، دھرمپورہ سمیت شہر بھر کے بازار سنسان ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ناشتہ باہر سے کرتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے یہ تفریح بھی چھین لی۔ بجلی بچاؤ مہم کے لیے ناشتہ پوائنٹس، بیکریاں اور جنرل سٹورز بند کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ چھٹی کے روز راشن کی خریداری کرتے تھے، اب خریداری بھی مشکل بنا دی گئی ہے۔ فیصلہ واپس ہونا چاہیے۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صحت کے حوالے سے اہم اقدام، ہیلتھ کیئر میں اسٹریٹجک اصلاحات شروع کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی ویل چیئر، معذور افراد کے لیے آلات کم قیمت پر تیار کیے جائیں گے۔ مصنوعی اعضاء کے لیے ساز و سامان کی تیاری میں اداروں کی مدد کی جائے گی۔
मरीजों के लिए म्यूज़िक थेरेपी जैसे इक़दामात मुतारिफ़ कराए जाएंगे। सलमान सूफ़ी का कहना है सेरिब्रल पाल्सी से मुतासरा मरीजों की तालीम व तरबियत के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज म्यूज़िक थेरेपी जैसे इक़दामात मुतारिफ़ कराए जाएंगे। दिमागी फालिज के मरीजों के लिए खुसूसी व्हील चेयर, दीगर माजूर शहरियों की मदद के लिए पाकिस्तान में कम कीमत पर आलात तैयार किए जाएँ। पंजाब भर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत का 16,000 टीचर्स फौरी भर्ती करने का ऐलान। असातिज़ा की भर्ती पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में की जाएगी। पहले मरहले में 16,000 असातिज़ा फौरी भर्ती होंगे। पंजाब भर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने हज़ारों टीचर्स फौरी भर्ती करने का फ़ैसला किया। असातिज़ा की भर्ती मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के लिए की जाएगी, जबकि असातिज़ा की तादाद में हर साल इजाफा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 16,000 असातिज़ा फौरी भर्ती किए जाएंगे। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद का कहना है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2,30,000 टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में लैंपी स्किन बीमारी फैलने के खतरात बढ़ गए। पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर गैर हाजिर जानवरों को बगैर चेकिंग मंडी भिजवाया जाने लगा। महकमा लाइव स्टॉक ने शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की चेकिंग के लिए दर्जा चहारम के मुलाजमीन बिठा दिए। मंडी में दाखिली रास्ते पर बैठे महकमा लाइव स्टॉक के मुलाजमीन जानवरों को बगैर चेकिंग अंदर भेजने लगे हैं। हमारे इधर जो जानवर वगैरह है उनको चेक वगैरह करके तो टीके शिक्के लगाने हैं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से शाहपुर कांजरा के खारजी रास्ते पर जानवरों की तशखीस के लिए कैंप नहीं लगाया जा सका। मुलाजमीन का कहना है लिम्पी स्किन बीमारी की तशखीस के लिए पैरामीटर्स मौजूद नहीं, सारे जानवरों को चेक नहीं कर सकते। हम चेक करते हैं, ये हमने एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है। इधर हम हर जो भी गाड़ी आती है हम उसका ये चेक करते हैं, उसकी एंट्री लिखते हैं। महकमा लाइव स्टॉक का अमला जानवरों में लिम्पी स्किन बीमारी की तशखीस से मुतल्लक आगाही न रखने से भी कासिर है, जिसकी वजह से मंडी में बीमार जानवरों के दाखिले और फरोख्त के खतरात बढ़ गए हैं। महकमा लाइव स्टॉक की मामूली सी गलती शहरियों की बड़ी ईद का मजा किरकिरा कर सकती है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ हसनैन औलख, सिटी 40। मवेशी मंडियों में जानवर लाए जाने का सिलसिला जारी है। ख़रीदार भी मंडियों का रुख कर रहे हैं। जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा होने के बायस शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी रहने के बाद मंडियों में शहरियों का रश बढ़ने लगा है। मोटे ताजे खूबसूरत और बेऐब जानवर जहां मंडियों की जीनत बने हुए हैं, वहीं ये खरीदारों की तवज्जो का भी मरकज बने नजर आते हैं। 9 डंगरा वास्ते वाड़ा लेना है, कहता असीं 3 मरले दे प्लाट देंगे तुहानू 40,000 रुपए का। मैं कहा यार कोई जायज़ कर, कहता 35,000 फाइनल हो जाएगा। असीं चुप करके उरे आ गए। राजनपुरी, फोर्ट आबासी, सिंधी और मोहम्मदपुरी बकरों के नखरे देखने के काबिल हैं। हट्टे कट्टे बैल और वहड़े भी अपनी खूबसूरती पर नाजा हैं। व्यापारी पाइन एवेन्यू, शाहपुर कांजरा और सगिया मवेशी मंडियों में आला नस्ल के जानवर लेकर पहुंच चुके हैं। खरीदार भाव ताव करते दिखाई देते हैं, लेकिन जानवरों की कीमतें जेब पर भारी पड़ने लगी हैं। सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए माकूल पैसों में खूबसूरत जानवर की तलाश शहरियों की तरजीह है। नौजवान तब्दीली के लिए निकलते हैं तो वो इनकलाब आता है। 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का PP 167 में जलसे से खिताब। बोले पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। इमरान खान का PP 168, 158 और 170 में भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चाहता हूँ आप सब तैयारी करें 17 जुलाई को। ये 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, ये जिहाद है, अपनी हकीकी आजादी की जिहाद है। अमेरिका ने अपने पुतले, अपने गुलामों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उन्होंने उन लोगों को ऊपर मुसल्लत किया जो इस मुल्क के बड़े बड़े लुटेरे 30 साल से मुल्क लूट रहे थे। 2 खानदानों ने 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। पहली दफा 90 की दिहाई में 2 दफा ये हुकूमतों को करप्शन पे निकाला गया। जब इनका एहतसाब होने लगा, दोनों सऊदी अरबिया भाग गए। और फिर इस बारी जब इनका एहतसाब होने लगा
तो नवाज शरीफ फिर दुम दबा के फिर लंदन भाग गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स शाहज़ैन भुगटी की मुलाकात हुई। इंसदाद मुनशियात और स्मगलर्स की सरकोबी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर से मुलाकात में कहा कि नई नस्ल की रगों में मुनशियात का जहर घोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। मुनशियात स्मगलर्स की सरकोबी के लिए तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर शाहज़ैन भुगटी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के अवामी रिलीफ के मुतालिक इक़दामात को सराहा, जबकि मुलाकात में नौजवानों को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाहे अमल अपनाने का फ़ैसला किया गया। साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की मारूफ सहाफ़ी सलमान गनी की रिहाइश का आमद हुई। भाई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन के हमरा मारूफ सहाफ़ी तज्ज़िया निगार सलमान गनी की रिहाइश गाह पहुँचे और उनके भाई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ और फातिह खानी की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अली ऑडिटोरियम में डेंगू और पोलियो के मुतालिक आगाही सेमिनार। कमिश्नर लाहौर ने हेल्थ वर्कर्स को डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए हिदायत जारी की। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह भी किया। फिरोजपुर रोड पर वाक़ अली ऑडिटोरियम में डेंगू और पोलियो से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने एक से शिरकत की। पोलियो कैंपेन पीर से शुरू होगी। इस मौके पर कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन बेहतर तरीके से सर अंजाम देकर मुज़ी अमराज को शिकस्त देंगे। बहुत सारे लोगों में जाके आपको ये कन्विंस करना पड़ता है लोगों को कि आप क्या काम करने आए हैं। समटाइम्स आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, समटाइम्स वो दरवाज़ा नहीं खोलते, समटाइम्स वो कोई बहाने करते हैं, समटाइम्स कहीं लड़ाई हो जाती है। इस सारे मसाइल आप लोगों ने सरअंजाम दे के ये इंश्योर करना होता है हर बच्चा हर बार। सेमिनार में एसी मॉडल टाउन सोनिया सदफ ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। उन्होंने कहा कि शहरी डेंगू सर्विलेंस और पोलियो कैंपेन को कामयाब बनाने में हेल्थ वर्कर्स के साथ ताउन करें। कोई बच्चा कैंपेन के दौरान कतरे पीने से महरूम रह जाए तो इसे करीबी हेल्थ सेंटर से पोलियो के कतरे पिलाएं। हम पोलियो, डेंगू, कोविड इस तरह के जो हमारे हर तरह की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, माशी सूरत हाल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, इन तरह की बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। तो आप इसी लगन के साथ बल्कि इससे भी ज़्यादा काम करते रहें। क्योंकि मानसून का सीजन आ रहा है तो डेंगू के हवाले से आपकी एक्टिविटीज़ की अहमियत और भी बढ़ जाती है। कमिश्नर लाहौर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर हेल्थ वर्कर्स को तारीफी इसनाद भी दी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक लाहौर डिवीजन की हर तहसील में इतवार के रोज इस तरह के सेमिनार मुनक्कद कराने की ताकीद की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर डार, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस में क्लब्स को 3 डिवीजन्स में तकसीम कर दिया। हर सिटी की टॉप क्लब प्रीमियम लीग में हिस्सा लेगी। शहर के 20 क्लब्स ने डिवीज़न 1 के लिए क्वालिफाई कर लिया। सतह पर क्रिकेट के फरोग के लिए तमाम सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस में क्लब को 3 डिवीजन में तकसीम किया है। हर सिटी के टॉप क्लब्स डिवीजन 1 और प्रीमियर लीग, जबकि विंटर लीग में पूल रनर्स अप क्लब्स को डिवीजन 2 और सबसे नीचे रह जाने वाले क्लब्स को डिवीजन 3 में शामिल किया गया है। लाहौर के 3 जोन्स के 29 क्लब्स ने डिवीजन 1 और प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ईस्ट जोन से गोल्डन स्टार क्लब, लाहौर जिमखाना, लकी स्टार, गालिब स्पोर्ट्स, जबकि वेस्ट जोन से क्रिकेट सेंटर, शाह फैसल क्रिकेट क्लब, मॉडल टाउन क्लब, लुधियाना जिमखाना और दीगर क्लब्स ने क्वालिफाई किया है। नॉर्थ जोन से एमपी जिमखाना, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, मुस्लिम जिमखाना, क्रिस्टियन क्लब, अपोलो क्लब और दीगर ने डिवीजन 1 में क्वालिफाई किया है। डिवीजन 1 में शामिल क्लब 50 ओवर के वनडे टूर्नामेंट और T20 लीग में हिस्सा लेंगे। डिवीजन 2 में शामिल क्लब सिटी गोल्ड कप, 40 ओवर मैचेस और विंटर लीग T20 मैचेस खेलेंगे, जबकि डिवीजन 3 में शामिल क्लब सिर्फ विंटर T20 लीग खेलने के अहल होंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। चौक मस्जिद वजीर खान के अहाते में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। शहर और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से आए आर्टिस्ट ने अपने फनपारे पेश किए। वॉल सिटी अथॉरिटी, मलिक नवाजिश अली वाजी फाउंडेशन और वेस्को पीके के ज़ेर एहतमाम नुमाइश हुई। चेयरमैन UCCID चौधरी जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर वॉल सिटी नौशीन जैदी, शाहिद इकबाल, मोहम्मद असद, तैयबा सदफ़ और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नौशीन जैदी ने कहा कि अथॉरिटी अंदरून शहर में कल्चर एक्टिविटीज़ और नए टैलेंट को मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 24वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब। कॉन्वोकेशन में 8 फैकल्टीज़ और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के 643 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गईं। बेहतरीन उस्ताद, मुहक्किक
और मुअज्जद को अवार्ड भी दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुनक्किदा तकरीब में अहमद बिलाल ने खुसूसी शिरकत की, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर सुहेल अफजल, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। इस मौका पर प्रोरेक्टर यूसीपी प्रोफेसर डॉक्टर नसर इकराम, फैकल्टी डीन्स के अलावा तालिब इल्मों और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जब आप तालीमी मैदान में उस मुकाम पर पहुँच जाएँ जिस मुकाम के बाद अब आपने आगे बढ़ना है, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दूसरा कॉम्प्लीमेंट ख़वातीन और हज़रात, ये यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया डिज़र्व करती है, इनके टीचर्स डिज़र्व करते हैं, जो यहाँ बैठे हैं और जो नीचे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कॉन्वोकेशन में 73 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स से नवाजा गया। ईशा रज़ा रोल ऑफ ऑनर की हकदार करार पाई। पहली मरतबा 2 नए अवार्ड्स, बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन मुहक्किक और मुअज्जिद का आगाज़ भी किया गया। हमारे पेरेंट्स की दुआओं से और हमारे बहन भाइयों की दुआओं से, टीचर्स की दुआओं से जो है हमने आज का दिन जो है वो बहुत मेमोरेबल बनाया और अपनी 4 साल की डिग्री जो है वो कंप्लीट की। ये हमारे माँ बाप की और हमारे टीचर्स की जो है वो मेहनत का सिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ाहिर सी बात है हमें डिग्री मिली है और मेरे पेरेंट्स आए हैं, वो मुझे यहाँ देखेंगे स्टेज पे, वो भी बहुत खुश होंगे। फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की मुनीबा फातिमा ज़हरा को बेस्ट टीचर अवार्ड, जबकि डॉक्टर सुमेरा ज़ेब एचओडी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेस्ट रिसर्चर के अवार्ड से नवाजा गया। मुझे लगता है अगर हम अपने प्रोफेशन को देखें, इट्स अ प्रोफेशन जिसमें आपके ऊपर बहुत हैवी जिम्मेदारी है, जिसमें आपने बच्चों को गाइड भी करना है, स्टूडेंट्स को ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के मुतालिक बल्कि उनकी डे टू डे लाइफ और एकेडमिक लाइफ के मुतालिक भी। यूसीपी का ये एजाज़ है कि यूके और तुर्की से भी फैकल्टी मेंबरान अब इसकी टीम का हिस्सा हैं। यूसीपी का केयर सर्विस ऑफ तलबा की इंडस्ट्री में मुलाजमतों के हसूल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फ्राहम कर रहा है और हर साल 70% तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट दिए जाते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा कोमल असलम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।